تازہ تازہ جوان کو دیکھتا تو اس کی داڑھی کا بوسہ لیتا اور بوسہ لے کے کہتا ہائے ہو میرا اکبر۔ کسی بچے کو دیکھتا، چھوٹے سے بچے کو میرا امام دیکھ لیتے، اس کو ہاتھوں میں اٹھاتے، اٹھا کے اوپر بلند کرتے اور بلند کر کے کہتے لوگوں ہمارے اتنوں کو بھی مسلمانوں نے نہیں چھوڑا۔ آزادارو یہ میرا وہ امام ہے کہ ہم مصائب پڑے جائیں تو روتے ہیں، یہ صرف یاد کر کے روتا تھا۔ ہم آنسو بہاتے ہیں، یہ میرا امام خون بہاتا تھا۔ میں جب جامعۃ المنتظر میں پڑھتا تھا تو وہاں پر انڈیا سے ذکی باقری صاحب مجلس پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ انہوں نے اپنی مجلس کے اندر اپنے استاد کا ایک واقعہ سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سید محسن الحکیم کے پاس پڑھتے تھے تو ہم نے ان سے سوال کیا کہ آغا کیا یہ امام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ امام خون روتے تھے، یہ کثرت گریہ کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ امام بہت زیادہ گریہ کرتے تھے یا واقعاً امام خون روتے تھے؟ کہتے ہیں کہ سید محسن حکیم کے پاس سفید رومال تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں پہ لگایا، لگا کے ہمیں دکھایا تو اس کے اوپر خون لگا ہوا تھا اور رو کے کہنے لگے میں نے تو صرف شہادتوں کو سنا ہے، وہ سید سجاد اور جس نے اکبر اپنے سامنے قربان ہوتے دیکھا، جس نے سید الشہداء کو اپنے سامنے قربان ہوتے دیکھا، وہ خون نہ روئے تو کیا روئے۔ آزادارو ایک دفعہ منہال نے امام سے یہ پوچھا کہ مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، آپ اتنا خون کیوں روتے ہیں؟ جیسے ہی یہ سنا امام کا خون بڑھا۔ امام نے کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، ذرا مجھے اتنا بتا کہ یعقوب کے کتنے بیٹے جو ہے وہ اس سے جدا ہوئے؟ منہال کہنے لگا مولا ایک یوسف جدا ہوا تھا۔ کہا مارا گیا تھا یا زندہ تھا؟ کہا مولا زندہ تھا۔ کہا کہ تو نے انصاف نہ کیا، اس کا ایک جدا ہوا تھا جو تھا بھی زندہ اور اتنا رویا کہ آنکھیں سفید ہو گئی، میرے 18 یوسف مارے گئے، سجاد خون نہ روئے تو کیا روئے۔ آزادارو یہ وہ میرا امام ہے کہ جب کساب کو دیکھتا، کسائی کو دیکھتا تو روتا۔ ایک دفعہ ایک کساب آ رہا تھا مدینے کی گلیوں میں، اس نے میرے مولا کو دور سے دیکھا، اس نے جانور کو چھوڑا کہ امام نے اگر دیکھ لیا تو امام پوچھیں گے، امام خون روئیں گے۔ کہتے ہیں کہ جلدی سے وہ کساب کہتا ہے کہ میں چھری کو اپنی آستین میں چھپانے لگا۔ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں چھپا رہا تھا امام نے مجھے دیکھ لیا۔ امام نے کہا آستین میں جو ہے وہ چھری نہ چھپاؤ، مجھے اتنا بتاؤ کہ تو نے جانور کو پانی پلایا تھا؟ کہتا ہے مولا ہاں میں جب گھر سے چلا تھا میں نے پانی پلایا تھا اور جب جاؤں گا ذبح کرنے سے پہلے بھی پانی پلاؤں گا۔ کہتا ہے کہ امام نے ایک مرتبہ کربلا کی طرف منہ کیا، منہ کر کے کہنے لگا ہائے او میرا پیاسا باپ، ہائے او میرا پیاسا بابا، آپ کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ آزادارو یہ میرا مولا ہے۔ آزادارو ایک مرتبہ زہری جو امام کا شاگرد بھی ہے، کسی روایات کے اندر آیا کہ ایک مومن اور کسی روایات کے اندر نام بھی آیا ہے۔ آزادارو یہ آیا ہے آگے آج بھی ہمارے پاکستان کے اندر اور ایشیا کے اندر یہ روایت ہے کہ جب کسی جوان کی شادی ہوتی ہے نا تو وہ جناب علی اکبر کے مصائب پڑھواتے ہیں۔ آزادارو اس کی جوان بیٹی کی شادی تھی، یہ امام کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، کیا آپ میرے بیٹے کی شادی پر آئیں گے؟ امام کہنے لگا، امام فرمانے لگے جب سے میرا بھیا علی اکبر مارا گیا تب سے میں نے کبھی کسی شادی میں شرکت نہیں کی۔ ہاں ایک وجہ سے میں شرکت کر سکتا ہوں، اگر تم اپنے گھر میں میرے بھائی علی اکبر کی مجلس رکھو تو میں تب آؤں گا۔ آزادارو یہ کہنے لگا مولا ہاں میں اپنے گھر میں
आपके भैया की जो है वो मजलिस रखता हूँ, आप उस वक्त तशरीफ लाएंगे। कहा कि जब किसी घर में मजलिस रखी जाए फिर दावत देने की जरूरत नहीं होती, सैयद सज्जाद खुद चल के चला जाता है। अज़ादारों ये जाने लगा, एक मरतबा पर्दे से जनाब ज़ैनब की आवाज आई और मेरे भतीजे जरा इसको रोको। इमाम ने जैसे ही रोका ना अज़ादारों, जब ये वापस आया कि बीबी ने कहा कि सैयद सज्जाद जरा इससे पूछो कि इसके घर में पर्दे का इंतजाम है। इमाम ने पूछा कि ज़ोहरी तुम्हारे घर में पर्दे का इंतजाम है? ये कहने लगा हाँ मौला, मेरे घर में पर्दे का इंतजाम है। मौला क्यों पूछ रहे हैं? बीबी ने कहा सैयद सज्जाद इससे कह दे। फिर सैयद सज्जाद अकेला नहीं आएगा और ज़ैनब भी चल कर आएगी और तू पर्दे का इंतजाम करना और सैयद शुहदा की बहनें भी आएंगी। अज़ादारों ये कहता है मैंने पर्दे का इंतजाम किया, अपने घर में मैंने पर्दे का जब इंतजाम कर लिया। अज़ादारों ये कहता है मजलिस शुरू हुई, जब मसाइब शुरू हुए ना, सैयद सज्जाद ने कहा ज़ोहरी जरा लाइटों को बंद कर दो, जरा लाइटों को बंद कर दो। मैंने कहा मौला क्यों चराग क्यों गुल कर दूं? कहा मैं देख रहा हूँ और तो ये लोग शर्मा शर्मा के रो रहे हैं और ये लोग शर्मा शर्मा के लोग रो रहे हैं और ये एक दूसरे के चेहरे देखते हैं तो शर्माते हैं और मैं चाहता हूँ और कि ये दाढ़े मार मार कर रोए और ये खुली आवाजों से रोए। ये कहता है मैंने चरागों को गुल कर दिया। वो कहता है कि जब मजलिस हो गई मैं परेशान हुआ और मैंने देखा कि मुझे सैयद सज्जाद कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो कहता है कि उस वक्त मेरी दाढ़ें निकली और जब मैंने देखा और कि जहां जूते उतारे जाते हैं और सैयद सज्जाद वहां बैठे हैं, हर आने जाने वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं तेरा शुक्रिया और कि मेरे भाई अली अकबर के रोने के लिए आ गए। अज़ादारों ये वो मेरे इमाम हैं और कि जिसको जहर दे दिया गया। अज़ादारों मैं कहता हूँ मुसलमानों और जिसके 18 जवान मारे गए और जिसका बाप मारा गया और जिसकी और फूफियों और बहनों को बाजारों में फिराया गया, उसको जहर देने की क्या जरूरत थी? उसका खून रोना ही इस दुनिया से ले जाता। अज़ादारों मगर इस मुसलमानों ने और मेरे इमाम को जहर दिया। अज़ादारों सैयद सज्जाद के सराहने इमाम बाकर बैठे हैं और इमाम बाकर पूछते जा रहे हैं और बाबा कोई वसीयत हो और बाबा कोई हसरत हो और बाबा कोई मुश्किल वक्त आया हो तो मुझे बताओ। सैयद सज्जाद कहते हैं और सबसे पहला और मुश्किल वक्त उस वक्त आया और जब मेरे बाबा को और शिमर शहीद कर रहा था और शिमर अपने खंजर से कत्ल कर रहा था और मेरी बहनें और फुफियां मुझे जगा रही थी और जगा के कह रही थी सज्जाद जागो और सैयद शहदा को मारा जा रहा है। और दूसरा मुश्किल वक्त मेरा उस वक्त आया, दूसरा मुश्किल वक्त उस वक्त आया और जब शिमर ने और सैयद शहदा का सर काटा, अभी मेरे बाबा का खून निकल रहा था। अगे इस मलऊन ने कहा और खयाम के ऊपर हमला कर दो, अब जहरा की बेटियों का कोई नहीं रहा। अज़ादारों मेरे मौला कहते हैं तीसरा वक्त उस वक्त आया और तीसरा वक्त उस वक्त आया और कि जब बीबियों के खैमों को आग लगी और रसूल जादियां मेरे पास आई, आकर कहती थी सैयद सज्जाद और तू वक्त का इमाम है और जरा बता हम आग में जल के मर जाए या बाहर निकल जाए। अज़ादारों सैयद सज्जाद कहते हैं अगला मुश्किल वक्त मेरा उस वक्त आया और कि जब जालिम और घोड़ों को दौड़ाते थे, ऊंटों को दौड़ाते थे और जब दौड़ाते थे इमाम बाकर के पांव पर उठते थे और जनाब सकीना के पांव पर उठते थे और बच्चों के गले जब घोटे जाते थे और मेरी आंखें बंद हो जाती थी और मैं देख न पाता था और नन्ही सकीना मेरे हाथों को कड़ियों को चूम के कहती थी भैया सज्जाद आंखें खोलो और देख क्यों नहीं रहे। मैं रो के कहता था और सकीना देखूं तो कैसे देखूं और काश मेरा चचा अब्बास जिंदा होता। अज़ादारों और जहर मिल गई और खून निकल रहा है मुंह से और जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अज़ादारों एक
मरतबा और वसीयतें करने लगे। आज़ादा और इमाम मोहम्मद बाकर ने कहा, बाबा क्या आपको पानी ला कर दूं, और बाबा क्या आपको पानी ला कर दूं। और मेरे मौला ने और खून रोना शुरू किया और रो के कहा, पानी मुझे नहीं चाहिए, मेरा बाबा प्यासा मारा गया और मेरा चचा अब्बास प्यासा मारा गया। आज़ादा रो उस वक्त वसीयतें करने लगे। कहा कि हाय हसरत, एक मरतबा इमाम के मुंह से निकला, हाय हसरत। आज़ादा रो इमाम मोहम्मद बाकर ने पूछा, ओ बाबा क्या हसरत है? और कहा कि हसरत यही है और कि जब कोई मारा जाता है ना तो उसके भाई जनाजा उठाते हैं। हाय हसरत के मेरा भी अली अकबर जिंदा होता, आज कासिम जिंदा होता, आज ओलो मोहम्मद जिंदा होते और तो मेरे जनाजे को भी उठाते। और फिर कहा हाय हसरत, और कहा बाबा और क्या हसरत है? और कहा कि जब कासिम मारे गए उस वक्त उसकी बहनें रोई, और जब अली अकबर मारे गए बहनें रोई, और जब मेरे बाबा के 9 टुकड़े हुए मेरी बहनें रोई। लेकिन हाय और कि मेरी बहन सकीना होती और तो वो भी मुझ पर रोती। आज़ादा रो इतना कहना था और कि नन्हे से हाथ बुलंद हुए और कहा भैया सज्जाद, और शाम से सकीना हाजिर है। आज़ादा रो रो के कहने लगी, सकीना आ गई। आज़ादा रो बस आखिरी जुमला। आज़ादा रो एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा, सैयद सज्जाद, बाबा क्या नाना के पास आपको दफन कर दे? आज़ादा रो अब सैयद सज्जाद को जहर भूल गया और कहा कि नाना के पास न ले जाना। और जब हसन लेकर गए थे उस वक्त उसकी बहनें तीर निकालने के लिए मौजूद थी, लेकिन मेरी बहनें मौजूद नहीं हैं जो तीरों को निकालेंगी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। Ya Hüseyin, ya Hüseyin.